See, in the last lecture, we have done the numerical based on standard Gibbs energy, and this formula we have used. Then today we are going to use, see, this is the formula we have done the derivation. Delta G equal to delta G0 plus RT ln Q, correct? But here ln means natural log base to the E, and therefore to convert the natural log to the base 10, we have to multiply by 2.303. So this formula we have done in the last lecture, means we have derived in the last lecture, but while solving the numerical, we are using this formula. Why? Because here it is ln Q and we are using value log to the base 10. So this formula we are using, and we'll be solving one numerical based on it, correct? So what is the formula we are going to use here? Delta G equal to delta G0 plus 2.303 RT log of QC to the base 10. Okay, so I'll start. See here, they have given the numerical. Calculate the delta G. See, they have asked calculate the delta G for the reaction. What formula? See, which formula we are going to use here? The formula we are using is delta G equal to delta G0 plus 2.303 RT log of K to the base 10. Correct? K means equilibrium constant. It can be Kc or it can be Kp. So this formula we are going to use. And to start with the formula, see, they have given the numerical here. Which numerical they have given? Calculate the delta G. So this is a solved problem because we are not having the problem of this type in the exercise. So it is solved problem number 4.20. They have asked us to calculate the value of delta G. Okay. For which reaction? They have given the reaction. The reaction they have given is what? CO in the gaseous state plus 2H2 in the gaseous state gives you CH3OH in the gaseous state. And for, say, reaction is in the standard state. So standard Gibbs energy is given, which is equal to minus 24.8 kilojoule per mole. Standard Gibbs energy is given, and also they have given the information here, the partial pressure of CO, which is 4 bar, partial pressure of hydrogen, which is 2 bar, and partial pressure of the methanol, which is 2 bar. They have given the partial pressure, correct? And this reaction they are performing at which temperature? 25 degrees Celsius. Okay, so 1 minute, see. They have given the, see, they have asked us to calculate the value of delta G. मतलब delta G का value find out करो. Equation दिया हुआ है और equation के लिए standard Gibbs energy दिया हुआ है. Standard Gibbs energy given. So they have given the value of standard Gibbs energy. और हमें calculate करना है delta G. Correct? Then 2.303 R. R is a gas constant and value is what? R is equal to 8.314 joule. Correct? Joule. But here see the value of delta G is given which unit? Kilojoule. So I'll multiply here by 10 raised to minus 3. Correct? And you will get which value? Kilojoule per Kelvin per mole. 8.314 into 10 raised to minus 3 kilojoule per Kelvin per mole. Why kilojoule? Because the value of the delta G is in the kilojoule, so R also has to be in the kilojoule. Temperature is given 25 degrees, so I'll write temperature is 25 degree Celsius plus 273 and is equal to 298 Kelvin, correct? And they have asked us to calculate the value of delta G. Now see here, this is in kilojoule. So delta G which we have to calculate is also going to be in which unit? Kilojoule per mole. Okay. So I'll start. But in this problem, देखो हमें delta G0 दिया हुआ है, ये number है, R दिया हुआ है, temperature दिया हुआ है, but K नहीं दिया, तो पहले हमें K find out करना पड़ेगा, K. और so here ये हमारा equations है, partial pressure of CO, partial pressure of hydrogen, partial pressure of methanol are given. So I'll find out here Kp.
Why Kp? Because they have given partial pressure of carbon monoxide, partial pressure of hydrogen, and partial pressure of methanol. So, and you know, we have learned the formula in equilibrium chapter last year. What is the formula for Kp? Partial pressure of the product, that is methanol, divided by partial pressure of carbon monoxide into partial pressure of hydrogen raised to 2. Why raised to 2? See, here the coefficient is 1. So coefficient is 1. Coefficient is 1. So coefficient is 1. और यहाँ पे coefficient 2 है, इसलिए यहाँ पे power 2 आ गया, correct? Power 2. Now we'll substitute the value. Partial pressure of the methanol is 2. Partial pressure of carbon monoxide is 4. And partial pressure of hydrogen is 2. Square. Methanol partial pressure is 2. Carbon monoxide partial pressure is 4. And partial pressure of hydrogen is 2 square. So here, if I less 2 upon 4 into 4, 2 square is 4, equal to 2 ones are 2, 2 twos are 4, so 4 twos are 8. So here I got 1 upon 8, 1 upon 8. And if suppose some student divide 1 upon 8, then 1 upon 8 is equal to 0.125. So we got the value of Kp. Kp is equal to how much? 0.125. Okay. Now, so here in this formula, they have given the value of delta G0. They have given the value of R. They have given temperature, and also we have calculated the value of equilibrium constant. Correct? Now I'll go for delta G. यहाँ पे थोड़ा calculation complicated है, इसलिए मैं numerical solve कर रहा हूँ. So 1 minute. Yes. Now I will use the formula here, that delta G equal to delta G0 plus 2.303 RT log of Kp to the base 10 equal to the value of delta G0 is given minus 24.8 plus 2.303, R is 8.314 into 10 raised to minus 3. Temperature is 298, correct? And into log of Kp. And what is the value of the Kp we have got? The value of the Kp we have got as 0.125, correct? So I'll write down here 0.125 log to the base 10. लेकिन देखो ये value log है. So next step equal to minus 24.8 plus 2.303 into 8.314 into 10 raised to minus 3 into 298 into, here it is log of 0.125, log of 0.125. So here I will write bar because मुझे इस नंबर का log देखना है, और इस नंबर का log देखने के लिए मुझे 0. मतलब बार हुआ है. And now please tell me log of 12 under 5. Yes, 0969. Thank you. 0969. Okay, 0969. ये log मिला. अभी देखो यहाँ पे ये तो नंबर प्लस है, लेकिन मुझे ये सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई देखो, मैं 2.303 को 8.314 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 8.314 को 298 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज ये नॉर्मल नंबर्स है. लेकिन इस सारे नंबर्स से मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये नंबर बाहर में. तो मुझे सबसे पहले बार नंबर को सिंपल फॉर्म में लेकर आना. ये कैसा कैलकुलेशन है वो हमें देखना है. बार नंबर को हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है. सिंपल, तो सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो. तो आई जस्ट राइट डाउन इक्वल टू minus 24.8 plus 2.303 into 8.314 into 10 raised to minus 3 into 298 into
now I'll convert bar 1 here. See, bar 1 को कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले नंबर जो यहाँ पे जो bar 1 है तो इसे मैं देखो यहाँ पे I'll just put the bracket here मैं bar 1 प्लस ये bar 1 को मैंने अलग दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 तो 0.0969 देखो मैंने खाली bar 1 को सेपरेट कर दिया और 0.0969 अलग दिखा एंड देन सी आई जस्ट शो यू ऑन पेपर। देखो यहाँ पे हमारा नंबर क्या था bar 1.0969 तो मैंने क्या किया bar 1 को अलग लिख दिया ओके और प्लस 0.0969 को अगर मैं दोनों नंबर को अगर ऐड कर रहा हूं तो मुझे वापस आंसर क्या मिलेगा bar 1 0969 तो मैंने bar 1 मतलब -1 लिखा और ये नंबर प्लस लिखा तो एडिशन सेम ही आ रहा है मैंने मीनिंग चेंज नहीं किया। एंड नाउ टू दिस नंबर यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा +1 एंड -1 देखो ये bar 1.0969 को मैंने स्प्लिट अप कर दिया स्प्लिट अप करने के बाद उस नंबर में +1 -1 ऐड कर दिया अभी क्या होगा देखो यहाँ पे ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा ये -1 मतलब bar 1 ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या करना पड़ेगा ये 1 में से 0.0969 को माइनस करना पड़ेगा बिकॉज 0.069 प्लस है और 1 माइनस तो इस सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तो आई जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप so here we get -24.8 plus 2.303 into 8.314 into 10 raised to -3 into 298 okay 298 and then here this -1 and +1 will get cancel और 1 में से नंबर सब्ट्रैक्ट करो मतलब कैसे करना है तुम्हें 1 ओके 1 मतलब 1.000 माइनस कौन सा नंबर आएगा 0.096 सब्ट्रैक्शन करो तो 10 - 9 is 1 10 - 7 is 3 0 0 और यहाँ पे 0 आएगा लेकिन तो दिस बट यू नो ये नंबर प्लस है और ये नंबर माइनस है तो -10 आ जाएगा यहाँ पे -0.903 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ये ब्रैकेट में माइनस है। अभी देखो ये सारे नंबर को मतलब ये नंबर यहाँ वाला नंबर ये नंबर और ये नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बिकॉज ये नॉर्मल नंबर है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे जाएगा इधर तो माइनस होगा तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप हियर -24.8 minus 2.303 into 8.314 into 10 raised to -3 into 298 into 0.9031 आ रहा है समझ में। देखो ये नंबर ये माइनस साइन यहाँ पे गया तो माइनस एंड प्लस हैज बिकम माइनस और ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हियर आई विल जस्ट हैव -24.8 माइनस एक्चुअली अभी ये मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन है और हमें लॉग से ही करना पड़ेगा मतलब नॉर्मल मेथड से पॉसिबल नहीं होगा तो वी हैव टू डू इट बाय लॉग। तो अगर हम लोग लॉग से करेंगे तो कैसे होगा देखो लॉग से कैलकुलेशन आई जस्ट राइट हियर लॉग कैलकुलेशन log of 2.303 plus log of 8.314 plus log of 298 plus log of 0.9039 ये देखो ये नंबर मैंने वैसे के वैसे ही रखा इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है 9031 को तो हियर आई नो द log of this number इसका log मुझे मालूम है 0.3623 0.9198 0.4246 please check the log of 298 4142 sorry 41 but please check 229 का log check करो कोई तो ये सॉरी 4742 यस 4742 और इसका लॉग मुझे बोलो बार 1 90 अंडर 31 90 अंडर 31
Okay, 9557. Okay, and all these numbers are multiplied to each other. So log can be added. तो देखो मैं इनको ऐड करूंगा अभी. 8 plus 2 10 plus 7 17 17 plus 3 20 0 2 5 plus 4 5 plus 4 9 5 plus 4 9 9 9s are 18 18 plus 2 20 or 2 22 so 22. Then here 6 plus 1 7 plus 7 14 or plus 7 21 2. Then here see 9 9 18 18 4 5 6 7 or 8 9. So 9 3s are 27. And then here 2 minus sorry हाँ 2 298 यहाँ पे 2 point आएगा. Okay, तो now here 2 plus 2 4 4 minus 1 तो यहाँ पे 3 आएगा. Yes, and now find out the antilog of 71 under 2. 71 under 2, please. Yes, please. 5152. So here I got 5152. Correct. So here I what I write here 5 point decimal point after 1 digit and into power 10 raised to 3. Correct. So we got the antilog. So now how much I got? 5.152. So here I'll write 5.152 into 10 raised to plus 3 we got, and already here which power is there? Into 10 raised to power minus 10 raised to power plus 3 and minus 3 will get cancelled. ये दोनों cancel हो जाएंगे. So what is remaining here? Minus 24.8 minus 5.152 which is equal to कितना आएगा देखो आंसर 2 5 8 plus 1 9. Okay, and 24 plus 25 is what? 29 minus kilojoule per mole. So this is the value of delta G. This is the value of delta G. खाली प्रॉब्लम में एक अलग पार्ट क्या था कि हम लोग देखो कोई बोलेगा ये नंबर के इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज ये नंबर बार में, तो बार नंबर को नॉर्मल फॉर्म में लेने के लिए क्या करना है? पहले नंबर को स्प्लिट अप कर दो. यहाँ पे आ जाएगा बार 1 और यहाँ पे आएगा 0.0969 और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 करना है, प्लस 1 माइनस 1 करना है, एंड देन ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 में से ये नंबर माइनस करो तो बिकॉज 1 इज अ बिगर नंबर देन दिस नंबर, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और फिर आगे प्रोसीड कर सकते. नाउ आई विल शो यू द ऑल्टरनेटिव कि अगर हमें ऐसा नंबर आएगा तो और सिंपल कैसे कर सकते हैं हम लोग. मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? 0 पॉइंट आ गया. हाँ, अगर यहाँ पे 1 पॉइंट होता तो 1 पॉइंट मतलब 0 पॉइंट समथिंग. अगर यहाँ पे डबल 2 डिजिट होता तो भी कुछ मतलब यहाँ पे 0 अगर नहीं होता तो हमें यहाँ पे बार 1 का प्रॉब्लम ही नहीं आता. तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है अभी हमें देखना है. ओके, तो आई जस्ट यूज द सेम फॉर्मूला एंड see again I'll use the same formula delta, but I'm just doing it the other way. Or what is the formula? Delta G equal to delta G0 plus 2.303 RT log of Kp to the base 10. तो डेल्टा G0 कितना था हमारा? -24.8 था प्लस 2.303. R का वैल्यू कितना था हमारा? 8.314 इंटू 10 रेज टू -3. टेम्परेचर कितना था? 298 इंटू, और अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे लॉग ऑफ, देखिए यहाँ पे मैंने केपी का वैल्यू कितना लिया था? 0.125 लिया और लॉग ऑफ 0.125 बाहर आ गया. तो मुझे आगे मालूम है कि अगर कभी भी ऐसा अगर मेरे सामने स्टेप आता है तो 0.125 विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? बार 1. तो मैं दूसरा मतलब व्हाट इज द अदर वे आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे
यहाँ पे हमने 0.125 यूज किया था, करेक्ट। तो 0.125 के जगह या क्या यूज करोगे आप, 1/8 यूज करो। तो यहाँ पे मैं करूंगा यूज 1/8, क्योंकि मालूम है जब 0.125 यूज किया था तो 0.125 के कारण यहाँ पे बार 1 है, बार 1 से हमें अलग करना पड़ेगा एंड फिर ये नंबर लेके आना। यहाँ पे 2-3 स्टेप्स बढ़ गए। तो इसीलिए अगर ऐसा बात 0 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है तो अवॉइड दैट। यहाँ पे नंबर क्या करो, 0.125 मत लो, क्या लोगे, 1/8 लो, लॉग ऑफ 1/8 टू द बेस 10। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगा, देखो यहाँ पे -24.8 प्लस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298 इंटू, अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये लॉग 1/8 का रेसिप्रोकल लूंगा। तो रेसिप्रोकल फिर क्या आएगा, लॉग 8/1। एंड व्हेन वी टेक द रेसिप्रोकल, यहाँ पे जो साइन प्लस है विल चेंज इनटू व्हाट, माइनस। तो देखो हमारे मैथ्स में फॉर्मूला है, अगर मेरे पास नंबर log x/y है तो अगर मैं उसे log y/x लिख रहा हूँ तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस, मतलब प्लस विल चेंज इनटू माइनस या माइनस विल चेंज इनटू प्लस। तो यहाँ पे प्लस था तो रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई विल गेट अ माइनस साइन। तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन आ गया, log ऑफ 8 और ये माइनस साइन आ गया। अब ये माइनस साइन यहाँ पे जाएगा तो नंबर माइनस बनेगा। तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप देन, the next step will be -24.8 plus 2.303 into 8.314 into 10⁻³ into 298 और एक -1 यहाँ पे जाएगा तो ये नंबर हमारा बनेगा माइनस, सॉरी हाँ यस, थोड़ा और क्लियर करता हूँ, ये नंबर बनेगा माइनस, ये माइनस हो गया। और अभी हमें देखना है log ऑफ 8। व्हाट इज log ऑफ 8, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। log of 8 will be 0 point. Now what is log of 8? Please tell me the log of 8. 8 मतलब 80. Yes, it is 9031. बस अभी नंबर सिंपल आ गया। अभी सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी नंबर देखो, ये नंबर को हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा -9031 आ गया। तो सेम यहाँ पे भी हमें वही नंबर मिला 9031। तो अगर तुम्हारा नंबर कोई 0 पॉइंट समथिंग में आ रहा है और उसका लॉग देखोगे तो क्या मिलेगा, बार मिलेगा। इससे अच्छा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लो और रेसिप्रोकल करने के बाद इजी हो जाएगा। और आगे वाला कैलकुलेशन अब करोगे तो यू विल गेट द आंसर हियर -24.8 माइनस दिस इज 5.1। ये पूरा सॉल्व कर दो, कितना आएगा 5.152 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ so -24.8 minus 5.152 power -3 plus 3 will get cancelled and we get the answer -29.952 kilojoule per mole। मतलब तुम्हें दोनों मेथड से मालूम होना चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम था, जो डेल्टा जी हमें वहां पे फाइंड आउट करना, करेक्ट। ये प्रॉब्लम हुआ। नाउ एक लास्ट प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी, फिर विद दिस हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। पेज 89 फ्रॉम एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 21। पेज 89 एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 21। ठीक है, मैं प्रॉब्लम शेयर कर दो तुम्हारे साथ एंड देन आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सी व्हाट दे हैव सेड, कैलकुलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड, मतलब हमें हीट कितना लगेगा इसके लिए, टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ द आइस। मतलब आइस को पहले मेल्ट करना है। ओके, मेल्ट करने के बाद आइस को हीट करना है। कहाँ तक हीट करना है, 100 डिग्री तक हीट करना है। और 100 डिग्री तक हीट करने के बाद आइस को वापस क्या करना है, वेपराइज भी हमें करना है। तो टोटल प्रोसेस में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट विल रिक्वायर। देखो अगेन लुक एट द प्रॉब्लम, उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड, मतलब हमें टोटल हीट कितना लगेगा आइस को मेल्ट करने के लिए, मेल्ट होने के बाद उसको 100 डिग्री तक हीट करने के लिए
और 100 डिग्री के बाद उसको वेपराइज करने के लिए कितना हीट लगेगा, करेक्ट। एंड जब गिवन द इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, करेक्ट। तो अभी देखो सबसे पहले हमें आइस को, राइट डाउन द डेटा हियर फर्स्ट। देखो उन्होंने क्या दिया हमें, they have given the ice. What is the amount of the ice they have given? 180 gram. And ice matlab it will be having what temperature? 0 degrees Celsius. Okay, ice will melt into water. Ice will melt into water, into which state? Liquid. लेकिन जब तक, और यहाँ पे आइस मेल्ट होगा, और जब तक वो मेल्ट हो रहा है, अमाउंट तो 180 ग्राम ही रहेगा, लेकिन जब तक वो मेल्ट हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। बिकॉज मेल्टिंग ऑफ द आइस इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मतलब जब तक आइस मेल्ट हो रहा है तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। मतलब हमारे पास 180 ग्राम आइस है और पूरा 180 ग्राम जब तक मेल्ट नहीं होता है तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, टिल देन इट्स टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 0 डिग्री ओनली, करेक्ट। तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, आइस मेल्ट हो रहा है, और कंप्लीट मेल्ट होने तक आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है। और एक बार पूरा आइस मेल्ट हो गया, अभी हमारे पास वाटर लिक्विड स्टेट में आ गया, वाटर का मास भी 180 ग्राम में रहेगा, वाटर लिक्विड स्टेट में आ गया, एंड देन वाटर ऑन हीटिंग विल चेंज वाटर इनटू लिक्विड स्टेट, वाटर इनटू लिक्विड स्टेट, अमाउंट तो 180 ग्राम ही है, बट नाउ दिस वाटर विल हैव व्हाट टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों ने क्या किया, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक चेंज कर दिया, पानी गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद में इस वाटर को हम लोग हीट करेंगे और हीट करेंगे, एंड देन वाटर विल चेंज इनटू विच स्टेट? गैसियस स्टेट। अमाउंट 180 ग्राम ही रहेगा, करेक्ट, अमाउंट 180 ग्राम रहेगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वेपराइजेशन, और हियर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फ्यूजन। फ्यूजन, दिस इज वेपराइजेशन। देखो मेल्टिंग ऑफ द आइस, मतलब आइस मेल्ट हो जाएगा, हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था फ्यूजन का, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन? द एंथैल्पी चेंज ऑकर when substance changes from the solid to liquid state at constant temperature, बट टेम्परेचर से जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता है तब तक यहाँ का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अभी आइस मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर कहाँ से इंक्रीज किया? 0 से 100 डिग्री इंक्रीज किया, और 100 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने आइस को वापस वाटर को हीट करना स्टार्ट किया, और हीट करने के बाद व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन? वेपराइजेशन का मतलब क्या होगा? द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स, the enthalpy change occurs when substance changes from liquid to gas without changing its temperature. Substance liquid से gas में convert तो हो जाएगा, but its temperature will remain constant. तो ये vaporization हुआ, ये हमारा fusion हुआ। बाद में यहाँ पे heat हो रहा है, यहाँ पे heating हो रहा है, यहाँ पे heating पे temperature बढ़ रहा है। तो ये है हमारा concept, यहाँ से यहाँ तक का concept है fusion, यहाँ से यहाँ तक का concept है vaporization, और ये हीटिंग मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री टू 100 डिग्री। तो यहाँ पे हीट कितना लगेगा, यहाँ पे हीट कितना लगेगा, और यहाँ पे हीट कितना, राइट, ऐड ये प्लस हीट रिक्वायर फॉर सेकेंड पार्ट एंड प्लस हीट रिक्वायर फॉर थर्ड पार्ट, कितना हीट लगेगा हमें कैलकुलेट करना है। एड ऑल द हियर टुगेदर, और बाद में हमें क्या मिलेगा? टोटल हीट, विल गेट टोटल हीट। तो अभी पहले सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो how much amount of the ice they have given? They have given 180 gram of the ice. Okay, 180 gram of the ice. So they have given mass of ice is 180 gram, and we know molar mass of water. Molar mass of water हमें मालूम है, mass of the ice is 180 gram, and molar mass of the water is ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 2 18 ग्राम पर मोल। ओके, तो हमें आइस का मास मालूम है, हमें आइस का मोलार मास मालूम है, तो आई कैन कैलकुलेट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आएगा? मास अपॉन molar mass. What is the mass of the ice?
180 ग्राम. What is the molar mass of the ice or water? 18 ग्राम. और देखो ये मोलर मास ग्राम में है और ये ग्राम पर मोल में है, तो ग्राम एंड ग्राम विल गेट कैंसल. 180 अपॉन 18 कितना आएगा यहाँ पे 10, और मोल रेस टू माइनस विल गो इन द न्यूमरेटर एंड बिकम्स व्हाट. तो दिस इज द नंबर ऑफ, मतलब 180 ग्राम ऑफ द आइस, 180 ग्राम ऑफ द आइस मींस हाउ मेनी मोल? 10 मोल. मतलब कोई बोलेगा कि हमें 180 ग्राम आइस दिया हुआ है, तो कोई बोलेगा नहीं हमें 10 मोल आइस दिया हुआ है. करेक्ट. तो ठीक है, अभी देखो आगे वाला पार्ट. Yes, they have given standard enthalpy of the fusion, और उन्हें हमें वैल्यू दिया हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस इज 6.01 किलो जूल पर मोल. अब इसका मतलब क्या होगा? फ्यूजन का मतलब कन्वर्टिंग द वाटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, और वाटर को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट लग रहा है? 6.01 किलो जूल पर मोल. मतलब अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है तो 1 मोल ऑफ वाटर को मेल्ट करने के लिए कितना हीट लगेगा? 6.01. सो आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर फॉर फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर और फॉर फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस. मतलब अगर पर मोल मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ आइस है तो 1 मोल ऑफ आइस के लिए कितना हीट लगेगा? 6.01 किलो जूल. और अभी यहाँ पे हमें उन्होंने कितना आइस दिया हुआ है? देखो 180 ग्राम आइस दिया हुआ है. 180 ग्राम आइस मतलब कितने मोल्स दिए? 10 मोल. तो 10 मोल के लिए कितना लगेगा? सो आई जस्ट राइट डाउन देयरफॉर फॉर फ्यूजन ऑफ 10 मोल ऑफ आइस कितना? 1 मोल के लिए 6.01, तो 10 मोल के लिए कितना? तो 10 इंटू 6.01 दैट इज इक्वल टू 60.1 किलो जूल. फर्स्ट पार्ट हुआ. तो ये हमें मिला कि अगर मुझे आइस को मेल्ट करना है तो मेल्ट करने के लिए कितना हीट लगेगा? 60.1. ओके, वी गॉट 60.1. ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. ये पार्ट 1 था. बताइए हमारा न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट. नाउ आई एम गोइंग फॉर सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल. सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल. व्हाट इज सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल? वी आर कन्वर्टिंग द वाटर. वाटर का टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री है, और कहां तक कन्वर्ट करें हम लोग? 100 डिग्री. वी आर कन्वर्टिंग वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री. करेक्ट. सो आई विल राइट डाउन हियर T1 is 0 डिग्री, T2 is 100 डिग्री. करेक्ट. और केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या ऐड करूंगा मैं? 273. सो दिस इज 273 केल्विन. यहाँ पे भी मैं ऐड करूंगा 273. सो दिस विल बिकम 373 केल्विन. And delta T, delta मतलब difference between the two temperature, and difference between the two temperature given by which formula? T2 minus T1. What is T2? 373 minus 273. देखो डेल्टा का मतलब difference between the two temperature. 373 minus 273. So how much will get here? 100 Kelvin. ये हमारा डेल्टा T होगा. Correct? डेल्टा T. Now here they have given one information. They have given the information as what? Specific heat of water is how much they have given specific heat of the water? 4.18 joule per gram per Kelvin. 1 minute. स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर उन्हें दिया हुआ है. स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर कितना दिया हुआ है? 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन. अब पर ग्राम पर केल्विन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास वाटर 1 ग्राम रहेगा, 1 ग्राम रहेगा, और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर मुझे 1 केल्विन से बढ़ाना है तो कितना हीट लगेगा? 4.18 जूल. सी द यूनिट्स आर वेरी क्लियर कि अगर मुझे मेरे पास 1 पर ग्राम मतलब 1 ग्राम वाटर है
और मुझे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर मुझे 1 केल्विन से बढ़ाना है तो कितना हीट लगेगा? 4.18 जूल, करेक्ट। तो हमारे पास कितना वाटर है? 180 ग्राम है। टेम्परेचर कितना चेंज करना है? 100, तो हीट कितना लगेगा? देखो, सी इज वेरी क्लियर, पर ग्राम वाटर, मतलब हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है हमें? 1 केल्विन से अगर बढ़ाना है तो कितना हीट लगेगा? 4.18। लेकिन हमारे पास उन्होंने आइस का अमाउंट कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 180 ग्राम है, तो 180 ग्राम हमारा आइस है, और 180 ग्राम का टेम्परेचर हमें 100 डिग्री तक बढ़ाना, तो उसके लिए हीट कितना लगेगा? तो वेरी सिंपल है, आई विल रिक्वायर हियर द हीट रिक्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास, एम सी पी इंटू डेल्टा टी, मतलब सेम है। देखो, इसे हम लोग बोलते हैं सीपी। सीपी का मतलब क्या हो? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड एज सीपी। ना अभी तुम लोग यहाँ पे बोले एम मतलब मास क्यों लिया है? बिकॉज देखो यहाँ पे वैल्यू उन्होंने पर मोल नहीं दिया, पर ग्राम दिया है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एम मतलब मास लेना है। व्हाट इज द मास? 180 ग्राम। देखो मैं यूनिट बाद में लिखूंगा। सीपी का वैल्यू कितना है? देखो 4.18, और टेम्परेचर कितना हमें बढ़ाना है? 100। तो ये हमारा वैल्यू 1 ग्राम पर केल्विन के लिए था, तो ये वैल्यू हमारा वैल्यू 180 ग्राम 100 केल्विन के लिए, इसलिए हमें ये वैल्यू को 180 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप यूनिट अगर आप देखना चाहते हो तो 180 ग्राम है, ये हमारा यूनिट जूल पर पर केल्विन पर ग्राम है। देखो, जूल पर केल्विन पर ग्राम है, और 100 हमारा केल्विन है। अब देखो क्या होगा, ये ग्राम और ये पर ग्राम, ये ग्राम और ये पर ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एक केल्विन और एक पर केल्विन कैंसिल हो गया। व्हाट इज रिमेनिंग हियर? जूल। तो इसका मतलब अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 180 मल्टीप्लाई बाय 4.18 इनटू 100 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई विल गेट द आंसर हियर इन विच यूनिट? जूल। एंड दैट जूल इज इक्वल टू 75240 जूल। 75240 जूल। ठीक है, हमें मालूम है प्रीवियस में यहाँ पे वैल्यू किलो जूल में मिला है, क्योंकि उनका फ्यूजन का वैल्यू किलो जूल में दिया था, इसलिए किलो जूल में मिला। तो यहाँ पे भी मैं उसको किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा, तो डिवाइड बाय 1000, तो हम चल गए 75.240 किलो। तो इसका मतलब अगर मुझे टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री से अगर 100 डिग्री अगर करना है तो कितना हीट लगेगा? यहाँ पे हीट लगेगा 75.24 ग्राम लगेगा ये हीट, करेक्ट। इस सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड, अभी हमें क्या करना है? वाटर को वेपराइज करना है। वेपराइज मतलब 180 ग्राम ऑफ द वाटर जो लिक्विड स्टेट में उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उससे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और उन्होंने यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दे हैव गिवन standard enthalpy of vaporization they have given, and the value is equal to 40.7 kilojoule per mole. देखो, the enthalpy of the vaporization is 40.7 kilojoule per mole, मतलब 1 मोल को वेपराइज करने के लिए कितना हीट लगेगा? 40.7। I'll just write down here, to vaporize 1 mole of water, how much heat we require? 40.7 किलोजूल। और हमारे पास कितना वाटर है यहाँ पे? 180 ग्राम। बट 180 ग्राम मतलब कितने मोल? 10। मैं मोल में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ? बिकॉज हियर दे हैव गिवन द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोल, तो इसलिए आई कैन देयरफॉर टू वेपराइज 10 मोल ऑफ वाटर, हाउ मच? ये 1 मोल के लिए, तो 10 मोल के लिए कितना आएगा आंसर? 407 किलो, करेक्ट। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट मतलब हमें आइस को वेपराइज करने के लिए इतना हीट लगेगा, यहाँ पे 407। Now I'll add all the answers. So here I will get, therefore total heat required for the entire process equal to, in the first part how much heat we require? 60.1. Second part, how much heat we required? 75.24. Or third part, how much heat we require? 407. And after adding all these values, you will get the answer here as 542.0
34 किलो जूल। दिस इज द आंसर। मतलब एंटायर प्रोसेस के लिए हमें इतना हीट लगेगा। देखो मैं न्यूमेरिकल एक बार वापस समझाता हूँ। हमारे पास 180 ग्राम आइस है, हमें आइस को पहले मेल्ट करना है। तुम लोगों ने मेल्ट हो रहा है तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? ये हमारा कंसेप्ट फ्यूजन का कंसेप्ट है। कोई भी आई सब्सटेंस जब तक मेल्ट होते रहता है तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मतलब एज लॉन्ग एज द सब्सटेंस इज मेल्टिंग इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अभी पूरा मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा 0 से 100, तो ये हुआ हीटिंग हुआ। और उसके बाद वेपराइजेशन का मतलब अभी वाटर बॉइल हो रहा है, बॉइल होने constant, temperature remains the constant. Okay, okay, so ये हमारा हुआ। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। उन्होंने क्या किया था, मास ऑफ द वाटर आइस 180 ग्राम दिया था। वाटर का मोलार मास हमें मालूम है। फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास। तो 180 अपॉन 18, तो हमें कितने मोल्स मिल गए, 10 मोल्स मिल गए, करेक्ट। बाद में सेकेंड पार्ट में क्या किया, एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन उन्होंने 1 मोल के लिए दिया था। हमारे पास 10 मोल है, तो 10 इंटू 6.0 ये आ गया। बाद में हम लोगों ने आइस का वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ा रहे, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ा रहे, करेक्ट। तो यहाँ पे 0 डिग्री से 100, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, दे हैव गिवन द वैल्यू फॉर पर ग्राम पर केल्विन। हमारे पास कितना ग्राम है, 180 ग्राम है। टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 100 से बढ़ाना है, इसलिए इससे मल्टीप्लाई करते, ये आंसर। लेकिन ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एम मतलब मास, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और बाद में थर्ड पार्ट, और 1 मोल को वेपराइज करने के लिए कितना हीट लग रहा है, 40.7। तो हमारे पास 10 मोल है, तो कितना हीट लगेगा, 407, एंड दिस इज द टोटल हीट रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा कुछ डाउट है अभी बोलो स्टूडेंट।